So this is how we expand. I gave you three, I attempted 3 questions here, and then I gave you 3 questions for you guys to solve, and you did it very well, mashallah. Next thing is special factors, expansion of special factors, and then we will quickly jump towards factorization. Expansion of special factors. Okay, so for example, if you have x minus 2 into x minus 2, what is the difference between this and the question of 2 factors we did in our previous lesson? Have a good look at these 2 factors. And now this one. What difference do you notice? Hmm. Yes. Anyone else? Do you see any difference here? Isn't? Yes, sir. What difference do you see here? The numbers are the same in this Yes. factor. The, yes. Basically, the 2 factors are exactly same. So can I write the 2 factors as x minus 2 whole squared? By simple basic law of indices, when the bases are same, what happens to the power? We add them up. So this is power 1, this is power 1. So that is going to give us x minus 2 whole square. Okay, next one. X plus 3 into x plus 3. This is going to be, can I write that down as x plus 3 whole squared? All right, next case. This is not the expanded form. This is still a factor form. Okay, this is factor form. This is also factor form, but this is a factor form in index form. Okay, the factors in index notation. Okay, next is x plus 3 into x minus 3. All right, now let's look into the expansion of these. Whenever we come across these type of factors, yes, we can expand them by using this simple distributive multiplication. There is no harm. But it is always recommended that you should know how to use algebraic identities whenever you come across these type of special factors. So there are 3 algebraic identities related to these. I'm going to list it down over here. So whenever you have a plus b whole square, the expanded part of these factors will always look like a squared plus 2 into a into b plus b squared. And whenever you have a minus b whole squared, the expanded part will look like a squared minus, because of this minus sign, we are going to have a minus sign with the middle term over here, which is 2 times the product of each term over here. So minus 2ab plus b square. Many students put minus with the b as well, thinking that this is minus b. So let's put minus over here as well. No, that will be wrong. Okay, next is a plus b into a minus b. A plus b into a minus b, and that will leave us with a square minus b squared. Now let's apply these identities over here and expand these. X minus 2 whole square, which identity, first, second, or third? This one matches with the second one. So in this case, in place of a, we have x, and in place of b, we have 2. So a squared means x squared minus 2 into a into b. So minus is going to come there for sure. 2 into a means x into b means 4. So 2 into x into 2. Do it in your head. What do we get? 4x. You should be able to do this in your head, okay? Plus
b squared. So the square of 2 is 4. So this is the expansion. Isn't this quicker? All right, let's apply this over here. A squared plus 2 into A into B, 2 into X into 3. Do it in your head. What do you get? 6x plus B squared, which is 9. We applied the very first identity over here. This one, apparently we have same factors, but the signs are opposite. So we cannot write them down in the index form. So in order to write down the factors in index notation, the two factors have to be exactly the same, 100% same, just like these two. इनको हम index notation में नहीं लिख सकते. Anyways, the expanded part of this is going to look like a squared minus b squared. In this case, this is a and this is b. So a squared minus b squared. So a squared is going to be x squared minus b squared. 3 squared is 9. ये आंसर आ गया. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा आपके पास. अब मैं एक क्वेश्चन दूं तीनों से रिलेटेड, ताकि आप उसको खुद अटेम्प्ट करें. ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन यहाँ आपके सामने रख देता हूँ और ये आइडेंटिटीज भी आपके सामने है. यहाँ पे मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन जो आपने भी खुद से अटेम्प्ट करने. 3 क्वेश्चंस दूंगा, कोशिश करें एक लाइन में उनको करें. जैसे ये देखें, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर, ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर. अच्छा बेटा, आज की क्लास के बाद ऑल ऑफ यू प्लीज सेंड मी योर फुल नेम्स टू मी ऑन व्हाट्सएप. आज मैं उस दिन आईडीज बनानी थी, कुछ की बनी है, तो मुझे आज आप सब ने अपना अपना पूरा नाम लिख के भेजना है ताकि मैं आप लोगों की आईडीज क्रिएट कर सकूं. जी जनाब, कर लिया. अस्सलाम वालेकुम ईमान, क्या हाल है? ठीक है. You just came in. I've given these questions to expand by using algebraic identities. Okay. Hani, you should be able to do it by now. Anyone would like to share their answers? Anyone? Or should I pick one? Ji Usman. So the first one is 4x squared minus 16. 4x squared minus 16. 16. Is that all?
Yes. Okay. Which identity have you applied here out of these three? The third one. Third one. Why? I need to know your thinking process. What does it look like? Something minus something, and then what do you see here? Whole square. Whole square. What does it look like? Which one? So the second Uh, one. Second one. This is these are basically the standard forms. You can say these are the maps. आप इनको ऐसे गाइडलाइन ले सकते हैं कि जब भी इस शक्ल की आपके पास एक्सपेंशन आएगी तो हमेशा आपने ये प्रोसेस लगाना. So this one matches with which identity? Second. Second one. So consider this whatever map, user manual, or whatever it is, the process guide. So a squared, so that is fine. Minus 2 into a into b क्या होगा इसके अंदर? 2 times a times b. Do it in your head. क्या आता है? Hmm? 4x squared minus 16x 2 into a into b. ये अगर नहीं समझ में आया तो ये देखें. 2 from the formula, from the identity, into a is 2x and b is 4. If you multiply all these three, what do you get? 2 2s are 4 and 4 4s are 16, and then this x as well. समझ आया? Okay. Yes. Plus the b squared. b आपके पास 4 है तो वो आपके पास आ जाएगा 16. ये इसका आंसर आ गया. ठीक है? Isn't? Yes, sir. X squared plus 3x plus 9 over 4. X squared, that's a squared, plus 2 3x. in, okay, that's the first identity, plus 3x, very good, It's 9 over 4. plus 9 over 4, very good. Okay, a squared, that's x squared, ठीक हो गया, plus 2 into x into 3 over 2. तो पहला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा तो पीछे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3x बच जाता है. वो आ गया 3x प्लस बी स्क्वायर. बी इज 3 over 2 एज अ होल. तो इस पूरे का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4. हाँ जी मावीन, आप मुझे आंसर बताएंगे इसका लास्ट वाले का? मेहरमा? X squared 49. x squared minus 49, a square minus b square. इस पे थर्ड आइडेंटिटी लिखती है. ठीक है उस्मान, आपने अब ये देखें, ये can you relate this with the third identity? Something plus something into something minus something. Okay, Yes. ठीक हो गया जी. So this is how you expand. Now I would like to take you to the factorization process. Now first of all, what is you need to understand what is factorization. Any expression has two extreme formats. One is completely expanded and the other format is factor form. Okay, moving from expanded factor form to the expanded form is known as expansion. That's what we did in our previous lesson, and even today, like all the questions we did, we expanded them and we were provided with the factor form. These were factors, these were factors, these all were factor form. Now we will be provided with the expanded form and we will be asked to get factor form, the opposite of that.
The process is known as factorization. In short, we will be going back from here to the factor form, from here to the factor form, from here to the factor form. And exactly in the same way, from here to here, from here to here. So how we are going to go about it? Let's see. Now, this is, before we jump to the factorization, we need to understand the complexity of it. We can have an expanded form in 2 terms, we can have an expanded form in 3 terms, we can have an expanded form in 4 terms. So let's make a list of the cases first, that in which situation, which methodology we are going to apply. First, we need to be clear about that. Once we are good about that, then we will move on that how to go about a particular methodology. So case one, whenever you have 2 terms and the 2 terms have a plus sign between them. Whenever you have 2 terms and there is a plus sign between them. For example, 4x squared plus 6x. How many terms do you see? Terms, I told you, are separated by a plus and a minus sign. So you can clearly see this plus this. How many terms do you see here? 2 terms. So 2 terms and a plus sign between them. Whenever you have this situation, you will always take common from both the terms in order to factorize it, and you will have your answer. So let's take common from here. So what is common from the 2 terms? The largest number which you can think of, which can be divided on both the numbers here. 2. So 2 from the numbers, and the lowest power of x is x. So that's common. You are left with 2x. Can anybody tell why we are left with 2x here? And why we are left with 3? Because 2 times 2 is 4x and 2 times 3 is 6. Very good. That's the reverse engineering you're applying. But if I look in one direction, like just forget about the expansion part, you're explaining me with the reverse methodology, which is good as well. But what is the process if we look into just one direction? Yes. Yes. Whatever you take common, very good, Shabash. Whatever you take common, it means you are dividing that thing with each term. So when you're taking 2x as common, so let me do this over here. You don't have to show this on the paper, but you should know the process in your head that this is actually happening behind the scenes. So for example, 4x squared, इसी एग्जांपल को समझाते हैं. 4x squared plus 6x, इसमें से जब आपने 2x कॉमन लिया, अब इसका मतलब है 2x दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हुआ है. 2x दोनों टर्म्स के साथ, 4x स्क्वायर के साथ भी और इसके साथ भी. करें जरा सिंप्लीफाई, क्या आता है यहाँ से? 2 2 जा 4, एक x कट गया, एक बच गया. 2 3 जा 6, दोनों x कट गए. क्या बचा आपके पास? 2x plus 3. समझ आए? चले, इसके ऊपर फिर मैं बाद में, ये भी इसलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर बाद में मैंने एक और बात भी करनी है, जो कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे. ये आपने पेपर पे शो नहीं करना. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये आगे काम आएगा आपको. यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, केस 2 पे आए जी. Whenever you have 2 terms, but this time you have a minus sign between them. ठीक है, फिर क्या करना है? फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने क्या चीज चेक करनी है? लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में, इफ यू आर एबल टू राइट ईच टर्म as a square of something, each term, if I'm able to write this capital A as small a square and this capital B as small b square. Okay, let me give you an example.
if I have 16 minus 9, can I write 16 as 4 squared? Can I write 9 as 3 squared? Yes. So this is what I'm talking about. Whenever you have two terms and you have a minus sign between them, first priority, I will check if I'm able to write each term as a square of something. Where does it? Okay, if you are able to do so, now remember what we are doing? We are factorizing, means we are moving from the expanded form to the factor form. Remember this, expanded form to the factor form. Let's go up. On this page, do you see any expanded form like this? There you go. Which one? Third identity. This one. This is the expanded form. So whenever we have an expanded form in as a square minus b square, तो उसके factors क्या बनेंगे आपके पास? A plus b into a minus b. So in short, whenever we have two terms और उनके बीच में minus का sign आएगा, तो हमने कुछ ज्यादा नहीं सोचना, हमने simply उसके ऊपर क्या apply कर देना बेटा? Third identity. If you are able to do so, then we will simply apply third identity. ठीक हो गया? फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद सेकंड पे आ गए। सेकंड पे आप तब भी आएंगे जब फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है। तो जब आपके पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आप क्या चेक कर रहे थे? इफ यू आर एबल टू राइट ईच टर्म एज अ स्क्वायर ऑफ समथिंग, इफ यू आर नॉट एबल टू राइट देम एज अ स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? फिर आपने कॉमन लेना, दैट्स इट। तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस करने, इसको सामने रखते हुए। ये जो मैं अभी केसेस लिखवा रहा हूँ, ये अभी तो 2 पेज पे चले जाएंगे, आपके ये सारे एक ही पेज पे आ जाएंगे। 2 केसेस और रह गए, 2 हमने कर लिए और 2 और रह गए, ठीक है? तो आपने सामने ये ऑल 4 केसेस पुट राइट इन फ्रंट ऑफ यू और प्रैक्टिस करते जाए। जब भी क्वेश्चन आए फैक्टराइजेशन का, व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ वर्ड, कमांड वर्ड फैक्टराइज, तो फौरन से देखें जी ये कौन सा केस बनता है, और फिर वहां से उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन अप्लाई करें। अच्छा जी, केस 3 पे आ जाते हैं अब हम। Case 3, we will be dealing with 3 terms. ठीक है? Case 3, we will be dealing with 3 terms. First priority. First priority. First priority में you need to check if it is quadratic or not. क्या वो quadratic है या नहीं है? Quadratic आपको किस स्टैंडर्ड फॉर्म में ढूंढनी होगी? ax squared plus bx plus c. अगर इस शक्ल की आपको कोई एक्सप्रेशन नजर आती है, then it means it is quadratic. Sometimes x squared plus something xy plus something y squared, this is also quadratic. इस तरह का क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, like for example 4x squared, ठीक है, प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर्ड, ठीक हो गया? तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है? तो जब भी इस तरह का आपके पास एक क्वाड्रेटिक आपके पास एक्सप्रेशन आएगा और वो फैक्टराइज करने को बोलेगा, तब आपने इफ क्वाड्रेटिक देन, ये आगे मैंने वो लिख दिए, क्वाड्रेटिक की शेप्स लिख दी है, हाउ विल दे लुक लाइक,
ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपके पास गिवन क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक है, अब क्वाड्रेटिक ये ना सोचें कैसा दिखने में लगता है, ऐसा इनमें से कोई है, ये ए बी सी की जगह कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है, ये ए बी सी we will have any other number instead of these two. अच्छा, तो अगर क्वाड्रेटिक है then एक टेक्निक होती है फैक्टराइज करने की, दैट इज नोन एज मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड या मिड टर्म ब्रेकिंग। तो आपने मिड टर्म ब्रेकिंग से इसको फैक्टराइज करना है। सो वन थिंग इज क्लियर, हमने मिड टर्म ऐसे इतनी रैंडमली किसी भी चीज पे नहीं लगाना होता, मिड टर्म हमें फैक्टराइजेशन के लिए लगाना होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फैक्टराइजेशन। और किसकी फैक्टराइजेशन के लिए, थ्री टर्म क्वाड्रेटिक के लिए, थ्री टर्म क्वाड्रेटिक के लिए। अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं है second priority, if not quadratic then common। फिर क्या करना बेटा, कॉमन है, सही है, ओके। अब हम चलते हैं केस 4 एंड द लास्ट वन, a plus b plus c plus d, कितनी टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स हैं और एग्जामिनर आपको कह रहा है फैक्टराइज करें। तो इसको हम हमेशा टू फोल्ड्स में हम कॉमन लेते हैं, इसको आपने एक ही तरीके से करना है बेटा, कॉमन इन टू फोल्ड्स। तो कॉमन इन टू फोल्ड से मुराद ए और बी का एक ग्रुप बनाएंगे आप, इसमें से सिर्फ कॉमन लेना है, फिर सी और डी का एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें से एक कॉमन लेना। अब इसके क्वेश्चन में कैच क्या है, इस क्वेश्चन में कैच क्या है, जब आप मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं उसमें भी बेसिकली 4 टर्म्स ही बन जाती है। ये फोल्ड्स लिखा है, मैं इसकी स्पेलिंग सेट कर देता हूँ बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कैच क्या है, ये तो आसान से क्वेश्चन है, तो फिर इस क्वेश्चन में मसला क्या है, इस क्वेश्चन में मसला ये है अक्सर ए बी से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता और ना ही सी डी से कुछ, आपने जो एक ग्रुप बनाया ए बी का उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और सी डी जो ग्रुप बनाया है उसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इट्स वेरी रेयर कि ऐसा हो। वैसे तो 99.9% चांसेस यही है कि जो 4 टर्म्स एग्जामिनर ने आपको दिए हैं, यू विल बी एबल टू फैक्टराइज देम विद द सेम अरेंजमेंट, ए और बी का एक ग्रुप, सी और डी का एक ग्रुप। बट अगर उससे नहीं हो रहा फिर आप इनको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं, आप ए और सी का एक ग्रुप बना लेंगे एंड बी एंड डी का एक ग्रुप बना लेंगे। सो रीअरेंज एंड देन चेक इफ यू आर एबल टू फाइंड अ कॉमन फ्रॉम दिस ग्रुप एंड फाइंड अ कॉमन फ्रॉम दिस ग्रुप। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी भी है, और कैसे इसको रीग्रुप कर सकते हैं, वेरी गुड, ए फर्स्ट एंड लास्ट का एक ग्रुप बन जाएगा। चले मैं इधर ही लिख देता हूँ, ए प्लस सी का एक ग्रुप बना दिया, बी प्लस डी का एक ग्रुप बना दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी है आपके पास, आप ए और डी लाइक फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म और ये सेकंड एंड द थर्ड टर्म, तो आपकी एक पॉसिबिलिटी ये बन गई आपके पास ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, दैट्स इट। अभी लग रही है सारी थ्योरी, बट जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपने इन केसेस को सामने रखेंगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, क्यों क्वेश्चन होगा आपसे। अब जरा जितनी भी स्ट्रैटेजीज इन सारे चारों केसेस में लिखी गई हैं, लेट्स डिस्कस दोस। केस 1 क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई हुई है, केस 1 कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं हम, by taking a common. बाय टेकिंग अ कॉमन। केस 2 क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं, दो स्ट्रैटेजीज हैं, एक हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी कॉमन ले रहे हैं। अच्छा, तो लिस्ट बनाते जाएं, कॉमन अपने पास कहीं साइड में लिस्ट बनाए लिखें, कॉमन एक कॉमन वाली टेक्निक है, दूसरी थर्ड आइडेंटिटी वाली है,
तो ये कॉमन रिपीट हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक दो ही टेक्निक्स आ चुकी हैं, दो केसेस में, कॉमन एंड थर्ड आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट, मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड। ये फिर से कॉमन है, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, रिपीट हो जाएगा। तो तीन टेक्निक्स हो चुकी हैं, कॉमन, थर्ड आइडेंटिटी, मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड है, एंड कॉमन अगेन। तो टोटल कितनी टेक्निक्स है बेटा? थ्री। टोटल थ्री टेक्निक्स हैं। केसेस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूजन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इन चार केसेस के अलावा और कोई केस नहीं आता। वैसे फर्दर ब्रेक डाउन करें केस का, तो एक केस ये बन गया, दो इसके अंदर से निकल आते हैं कि स्क्वायर वाले होंगे तो क्या करना है, स्क्वायर वाले होंगे तो नहीं होंगे तो क्या करना है, क्वाड्रेटिक होगा तो क्या करना है, क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो क्या करना है। बट आप ये चार केसेस ही याद रखें। सो अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ओपन करता हूँ, एंड आप, सर आई होप आप सबने ये नोट्स बनाए, नोट्स बना लिए बेटा? यस सर, हम Yes, sir. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मिड टर्म ब्रेकिंग। हाँ जी, हाँ जी, ये अभी मेथोडोलॉजीज को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अभी हम सिर्फ आज आज का हमारा जो मेन पर्पस था वो सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करना था कि जब क्वेश्चन आता है ना फैक्टराइज का, कमांड वर्ड आता है फैक्टराइज, स्टूडेंट को आइडिया ही नहीं होता कि किस पाथ के थ्रू मैंने इसको लेके चलना है। इफ यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया दैट हाउ टू गो अबाउट दैट क्वेश्चन, फिर तो ये आपका पीछे काम थोड़ा सा रह जाता है ना, एक स्किल। अभी हमने जो स्किल्स डेवलप करनी है वो तीन स्किल्स डेवलप करनी है। वो अभी आपको मैंने कहा था लिस्ट बनाया था, जितनी भी टेक्निक्स है सारी, वो लिस्ट कौन कौन सी बनी है बेटा? सारी स्किल्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो एक स्किल आपको आनी चाहिए कॉमन लेने की, वो मेरा ख्याल है सबको आती है। उसमें एक मैंने बात आपको बताई कि कॉमन लेने का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि डिवाइड करना, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो एक स्किल है उसके अंदर है थर्ड आइडेंटिटी का यूज करना इन रिवर्स डायरेक्शन, फ्रॉम एक्सपैंडेड फॉर्म टू दी फैक्टर फॉर्म। वो भी हम डिटेल में, ये भी आता है आप लोगों को, बट हम फिर भी इसको डिटेल में करेंगे। अगर नहीं आता तो टेंशन नहीं लें, ये हम करना है, एक एक चीज करेंगे इसमें से। और तीसरी आपके पास यहाँ पे आई है स्किल एक, मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड। टोटल तीन स्किल्स हैं, सारी फैक्टराइजेशन हो जाती है। अब मैं पास पेपर का एक क्वेश्चन खोलता हूँ कैम्ब्रिज का, और जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन। आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे देख के बताना है कि which methodology you will be adapting in order to factorize that, okay? Just give me 1 second please, मैं क्वेश्चंस ओपन कर लूं। ऑलराइट, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ax² प्लस bx²। हाँ जी, कौन सा केस बनता है? कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स। दो टर्म्स वाले पहले दो केस थे, अब पहले दो में से ये कौन सा है? The one which had a positive sign between them. So whenever you have two terms with a positive sign between them, do we have options? What options do we have? So we don't have any options. डायरेक्ट मेथोडोलॉजी पे जंप करें। क्या करना है इधर, कैसे करेंगे? कॉमन ले लेना। क्या कॉमन आ रहा है? x² कॉमन आ रहा है, a प्लस। केसेस के पता होने से आपके जो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं, कि आप कहीं किसी गलत साइड पे ना निकल जाएं। अच्छा, हाँ जी, केस केस थ्री में कौन सा वाला? उसमें दो प्रायोरिटीज थी। शाबाश, थ्री टर्म्स, केस थ्री आ गया। मिड टर्म ब्रेकिंग और कॉमन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक। सो
इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक तो फिर हमने क्या करना है, मिडिल टर्म Midterm ब्रेकिंग, शाबाश, तो हमने उसके ऊपर मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करनी है। वेरी गुड। हाँ जी, दो टर्म्स वाला, पहले दो केस है, उन दो में से ये कौन सा है? Case 2. केस टू, बीच में माइनस का साइन आ गया। तो केस टू में हमारे पास दो प्रायोरिटीज थी। पहली प्रायोरिटी ये थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज वी नीड टू चेक इफ वी कैन राइट ईच टर्म एज अ स्क्वायर ऑफ समथिंग। पी स्क्वायर एक्स को एज अ होल में किसी का स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूं? ये वाला क्वेश्चन हम साथ साथ करते भी हैं, लिख सकते हैं। पी स्क्वायर तो चलो पी का स्क्वायर है, अगर आप इसको यूं लिखें क्या ये ठीक होगा? इज दिस करेक्ट? व्हाई इज इट नॉट No. करेक्ट? सर ये क्योंकि जो जब आप स्क्वायर है ये, शाबाश शाबाश, यस मोहम्मद प्लीज गो ऑन। सर क्योंकि जब आप डाल लेंगे तो जब होल स्क्वायर होता है उसका मतलब दोनों पे स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ पी पे स्क्वायर है। वेरी गुड। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। सो पहली टर्म को मैं स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो दूसरी को मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का स्क्वायर फॉर्म में होना जरूरी है। तो सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाओ। सेकंड प्रायोरिटी क्या थी? Take common. टेक कॉमन। व्हाट इज कॉमन? सर X. Just x is common, and we will be left with p square minus 4q, oops, square, p squared minus 4q square. ठीक हो गया? ठीक हो गया? Done? Finished? Yes. No, not finished. फैक्टराइजेशन का यहाँ पे ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए लिया, एक रूल याद रखें, जब भी आप फैक्टर्स बनाते हैं और आपके पास एक ऐसा फैक्टर आ जाए जिसमें मल्टीपल टर्म्स आ रही हो, कितनी टर्म्स आ रही हो? मल्टीपल टर्म, उसको हमेशा चेक करें कि क्या आप उसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना। अब मेरे पास यहाँ पे अभी तक दो फैक्टर्स बने, एक फैक्टर बना मेरे पास x, दूसरा फैक्टर बना मेरे पास पी स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। तो ये जो दूसरा वाला है, जिसमें ये वाला जो मैंने ब्लू हाईलाइट किया है, इसमें दो टर्म्स हैं, मल्टीपल टर्म्स आ गई। नाउ आई नीड टू चेक दिस फैक्टर if I am able to factorize this further or not। तो अपने सामने चारों केसेस खोलें, देखें जी which one। केस वन क्या था आपके पास? रेफर टू योर केसेस, शाबाश। केस 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 वन देखें क्या था? केस वन वाज प्लस साइन बिटवीन द टू टर्म्स। कौन सा केस है ये? केस टू, माइनस साइन आ गया फिर बीच में। अब फर्स्ट फोल्ड में क्या करना है? फर्स्ट प्रायोरिटी में Third identity. yes, can we apply third identity or not? So उसके लिए No. मुझे ये देखना है कि क्या मैं हर टर्म को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ। p स्क्वायर को मैं p होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, इसको मैं क्या लिखूंगा? 4q होल स्क्वायर। क्यों? हमने ये देखना है 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है बताएं? 2 का स्क्वायर है, शाबाश। तो 2q एंड देन होल स्क्वायर। तो चेक कर लिया करें, एवरी स्टेप को पीछे से रिलेट करें, इसको वापस पीछे लेके जाएं। 2 स्क्वायर 4, q and then q का स्क्वायर q square. So I am actually able to write each term as a square of something. So if I'm able to do that, I will be applying third identity. थर्ड आइडेंटिटी क्या है? ऐसी अगर एक्सपैंडेड फॉर्म हो तो उसके फैक्टर्स की शक्ल कुछ ऐसी होगी। तो a की जगह यहां पे हमारे पास क्या है? p। तो p और b की जगह क्या है? 2q। तो इसकी कुछ
फैक्टर्स ऐसे बनेंगे p plus 2q, p minus 2q. Can I factorize this further? No, this is it. समझ में है? आखिरी क्वेश्चन, देन आज का क्लास एंड करेंगे। कल हम मिड टर्म ब्रेकिंग वाली टेक्निक को डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी बच्चे, अब मुझे ये बताएं, x minus 10x 25x, तीन टर्म्स आ गए जनाब वाले। केस चेक करें कौन सा। मिड टर्म ब्रेक। केस चेक करें कौन सा। Case 3. Case 3. And what makes you say that it is case 3? Because it Shabash, has you're three telling me terms. right, but I want to listen to your thought process. It's a quadratic equation. No, I'm asking what makes you say it is case 3? Case 3 की क्या निशानी थी? It has Has three three like, terms. papers. 3 terms. So it is 3 terms, so it is case 3. First priority क्या थी बेटा, उसमें चेक करें। Midterm breaking. फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने क्या चेक करना है? प्रोसेस, मिड टर्म ब्रेकिंग तो एक प्रोसेस है ना। Quadratic or not. क्वाड्रेटिक, इफ इट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की मैंने आगे कुछ आपको शक्लें लिख के दी थी, दैट दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। वो शक्लें जरा देखें, इसको कंपेयर करें उससे। देखें जरा, वो जो क्वाड्रेटिक की मैंने आगे कुछ आपको शेप्स लिख के दी थी, डज इट मैच? इस तरह के क्वेश्चन में मेजॉरिटी स्टूडेंट यही मिस्टेक करता है कि वो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर देता है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है बेटा। ये कौन सी इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है? दिस इज क्यूबिक। व्हाट पावर डू यू सी हियर? व्हाट पावर डू यू सी हियर? Cubed. This is x cubed minus 10x squared plus 25x. ठीक है? So remember, examiner will always try to confuse you. I am telling you the possible pitfalls for these types of questions. If you're already aware of the pitfalls, there is no way you will fall into it. Okay? Now, x cubed minus 10x squared plus 25x. Quadratic ही नहीं है, क्या करें? जब फर्स्ट प्रायोरिटी खत्म, क्वाड्रेटिक है ही नहीं है, तो अब क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्वाड्रेटिक के प्रोसीजर को भी हमने नहीं देखना। जब क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर क्या करते हैं? टेक Comma. कॉमन। पूरी तीनों टर्म्स में से आपने कॉमन लेना। क्या कॉमन आ रहा है बेटे? एक्स कॉमन आ रहा है। 5 क्या और बचेगा अंदर? एक्स स्क्वायर्ड माइनस 10x प्लस 25। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने एक रूल बताया था, हर दफा जब भी फैक्टराइज करें, ऑलवेज चेक व्हेनेवर यू कम अक्रॉस विद अ फैक्टर विद मल्टीपल टर्म्स इनसाइड इट, तो चेक करें कि क्या आप उसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। ये केस कौन सा बनता है? केस कौन सा बनता है? 3 टर्म। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, दिस फैक्टर इज क्वाड्रेटिक। इस पे हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करें। क्लियर है? Yes. Any questions? No, sir. This is it. ठीक हो गया? यहां तक बस आज हमने यहीं तक किया। कल यानी हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज की प्रैक्टिस करनी है और उसी को सीखना है, दैट इज मिड टर्म ब्रेकिंग। ठीक हो गया? चलें इंशाल्लाह। सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.